Now it's time to discuss the prepositions which are in static and dynamic condition. When an object, when a person is in static condition or without any movement, at that time static condition based prepositions will be used. When a thing is making movement or is in action or going somewhere or making action, at that time dynamic condition based prepositions will be used. And there is an example for you: in and into. In is used with static condition, whereas into is used with dynamic condition. There are 40 students in a class. There are 40 students in ninth B, and the students are in a specific area. They are not going outside or not coming inside from the specific area. So they are in static condition. There are 40 students in a class. There are 8 mangoes in a plate. Mangoes are very delicious. Everyone feel tempted to see the mangoes. Okay, the mangoes are in a plate. They are not bouncing. They are not making any movement. They are not jumping. So they are in a static condition. You'll have to use in here. Now it's time to into. Into is used with dynamic condition. A tiger jumped into a river. Here tiger is going to jump. It's making an action and it's a dynamic condition. When a condition is dynamic, when it is making a movement, at that time you'll have to use the preposition into for may. May के लिए आपको into का use करना है. And a boy jumped into a river. एक लड़के ने रिवर में छलांग लगाई. Here movement is made, so the preposition which is used, that is into. Now, there are prepositions which are on and upon. On and upon, similarly, the same condition is repeated again. On is used with static condition and upon is used with dynamic condition. There is an apple on the books. किताबों पर एक सेब है. ये it's not bouncing here, static condition में है, so we are using here on. Similarly, there are 3 balls on the table. टेबल पर 3 balls हैं. They are in also in a static condition or without any movement. Upon is used with dynamic condition. A cat jumped upon the floors. A brown cat jumped upon a black cat. When a thing is in a movement, when a person is making a movement, at that time the preposition used, that is upon. आपको जो प्रेपोजिशन यूज करना है वो अपॉन का यूज करना है. इसी तरीके से सपोज इट इज अ टेबल एंड अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. Okay, a cat jumped upon the table. Preposition upon will be used here. Not will not be used. Not will be used as there is a book on the table. Book is in a static condition. When dynamic position is made, you'll have to use the preposition this one. Next preposition, that is above and over. Now we are going to discuss about above and over. Above is used with static condition, whereas over is used with dynamic condition. As the sky is above my house and the tree. आसमान पेड़ के ऊपर है. सपोज आपके सर पर फैन है. देयर इज अ फैन above my head. आप on the head नहीं लगाएंगे. above और over on और upon की जगह पर ही लगाए जाते हैं. लेकिन above over में on upon में ये फर्क होता है कि on और upon में चीजें एक दूसरे को टच करती हैं. things touch each other, whereas in case of above and over, things do not touch each other. चीजें एक दूसरे को टच नहीं करती. आसमान काफी ऊपर है, सर के ऊपर फैन है, फैन भी सर से टच नहीं करता, स्टैटिक कंडीशन में है, अबव का यूज होगा. लेकिन एन एरोप्लेन पास्ड ओवर माय हाउस, एक एरोप्लेन मेरे घर के ऊपर से गुजरा. घर के ऊपर से गुजरा, इट मींस इट्स नॉट टचिंग योर हाउस, and we are using here over because aeroplane and the birds are in dynamic conditions. Okay, next preposition for you with the static and dynamic conditions are, they are in front of and before. Same condition is repeated as there is a beautiful tree in front of my house. मेरे हाउस के सामने खूबसूरत सा पेड़ है. तो the tree is static condition में है.
इसीलिए हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज किया है। इसी तरीके से a boy is sitting in front of a tiger, in front of a lion, so they are not making any movement. A little movement is not considered here. Now a cat passed before a dog. Cat passed before a dog, they are making a movement, they are passing, so before will be used. सामने के लिए दो शब्द होते हैं, in front of और before. Before गति वाली चीजों के साथ लगता है, जैसे a man is running before a car. Here you will not use here in front of, यहां पर आप in front of का यूज नहीं कर। In case of behind and after, same thing is repeated. Behind is used with static condition, after is used with dynamic condition. The sun is behind the tree and a mustard field is behind me. So we are using here the prepositions behind. And suppose there is a tree behind my house, and next preposition is after. A cat is running after a rat. It means we are using here after in case of movement. And a policeman is running after a thief. And these are the prepositions which are in dynamic and static conditions. Now, apart from the prepositions of dynamic and static condition, another preposition is at. It's not used in the case of static and dynamic condition. A beggar is sitting at the gate. जब पर का मतलब ऊपर से ना हो, उस वक्त at का यूज होता है। भिखारी दरवाजे पर बैठा है, but he is not on the gate, so we are using here at. Look at the board. Students are looking at the board. एट द बोर्ड, बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां पर का मतलब ऊपर से नहीं, इसीलिए हमने यहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज किया। ही इज नॉकिंग एट द गेट, वो गेट पर नॉक कर रहा है। नाउ ही इज लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हंस रहा है। वो मुझ पर तो हंस रहा है, मेरे ऊपर खड़े होकर के नहीं हंस रहा है। सो द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड इन केस ऑफ पर, but that is not on, upon, above and over. preposition with का यूज साथ में के लिए किया जाता है। as there is an example for you, Alice is standing with Arshian. Alice अर्शियान के साथ खड़ी है। I am talking with Anas, मैं अनस के साथ बातें कर रहा हूं। राम इज गोइंग विद रवि, इन दैट केस साथ के लिए आपको विद का यूज करना होता है। लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर विद का यूज जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम करते हैं, किसी वेपन के साथ कोई काम करते हैं, या किसी चीज के साथ कोई काम किया जाता है। इट मीन्स व्हेन वर्क इज डन with any medium, at that time you'll have to use with. Suppose I am writing with a pen, I am writing with a pencil, he cuts the tree with a saw. वो एक सॉ के साथ पेड़ को काट रहा है, तो यहां पर से निकल रहा है इंग्लिश में, लेकिन यूज विद किया जा रहा है। सो विद इज द करेक्ट प्रीपोजिशन जब किसी इंस्ट्रूमेंट, वेपन या थिंग के साथ हम काम करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर बाय। By का use most of the time we use in passive voice. She reached by a bicycle. It's not the same sentence, and there is also a sentence of passive voice. He is given a pen by me. वो मेरे द्वारा पेन दिया गया, उसे मेरे द्वारा पेन दिया गया। जब पेन या कोई चीज किसी के द्वारा की जाती है, he is beaten by his father, he is awarded by his teacher, तो ऐसे सेंटेंसेस में बाई का यूज होना जायज है। लेकिन से के लिए भी वाई का यूज करते हैं। जब हम किसी व्हीकल से कहीं पर आते जाते हैं तब हम बाई का यूज करते हैं। जैसे ही रीच्ड बाय अ बाइसिकल, वो एक बाइसिकल से पहुंचा है। ही वेंट टू लंदन बाय एन एरोप्लेन, वो एक लंदन से एरोप्लेन गया। नेक्स्ट, ही केम इंडिया बाय ट्रेन, वो ट्रेन से इंडिया आया। तो जब किसी मीडियम से कोई काम करते हैं, एट दैट टाइम बाई इज यूज्ड। बाई का यूज हम अक्सर टाइम से पहले आने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम टिल 4 o'clock, वो 4 बजे तक आ जाएगा, टिल 4 o'clock।
वो 4 बजे तक आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाय का यूज करना चाहते हैं, ही विल कम बाय 4 o'clock, वो 4 बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय का मतलब है कि वो वक्त से पहले आ जाएगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस आर बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय, पास में। विशाल इज सिटिंग बिसाइड अंकुश, विशाल अंकुश के साथ बैठा है। अ डॉग वॉज लाइंग बिसाइड अ स्ट्रीम, एक कुत्ता एक धारा के पास लेटा हुआ था। माई हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड अ रिवर बैंक, एक नदी के किनारे मेरा घर स्थित है। तो ऐसे सेंटेंसेस में पास के लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। वहीं पर अगर बिसाइड के साथ एस जोड़ दिया जाए और हमारा बिसाइड्स हो जाए, इन दैट केस इसका मतलब टुगेदर विद हो जाता है। आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, मैंने एक पेन के साथ एक पेंसिल खरीदी, पेन के अलावा एक पेंसिल खरीदी। ही सोल्ड हिज हाउस बिसाइड्स हिज कार, उसने अपने कार के अलावा अपना घर भी बेच दिया। लक्ष्मी स्टडीज जियोग्राफी टुगेदर विद मैथ्स और बिसाइड्स मैथ। आप ऐसे बिसाइड्स का यूज अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिसाइड और बिसाइड्स का। नेक्स्ट अलोंग एंड अक्रॉस। अलोंग अगर एंड अक्रॉस के केस में पल्लवी इज गोइंग अलोंग द रोड, पल्लवी रोड के किनारे किनारे जा रही है। पल्लवी इज गोइंग अलोंग द रोड, ही वॉज गोइंग अलोंग द रिवर बैंक। सपोज एक और सेंटेंस हो सकता है जैसे द शीप आर ग्रेजिंग बिसाइड द रिवर, नदी के किनारे किनारे चल रही हैं। इसी तरीके से जितेंद्र इज गोइंग अक्रॉस द रोड, हेयर जितेंद्र, इट इज अ पिक ऑफ JNV Rajouri, जितेंद्र इज गोइंग अक्रॉस द रोड। when movement is making in such a way, suppose the road is in such a way and you are making movement across, इट्स कॉल्ड अक्रॉस। और जब रोड के साथ में हम चलते हैं किसी एक ऐसे तरीके से टुगेदर विद या अलोंग विद, देन हम अलोंग का यूज करते हैं कि पल्लवी इज गोइंग अलोंग द रोड, पल्लवी रोड के किनारे किनारे जा रही है। नाउ व्हाट डू नेक्स्ट प्रेपोजिशंस से? इन स्पाइट ऑफ एंड इन स्टेड ऑफ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, जब दो चीजों या दो बातों के बीच में विरोधाभास होता है, कंट्रास्ट होता है, एडवर्स कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं? इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, ही लुक्स लाइक अ रिच मैन, वो एक रिच मैन की तरह दिखता है। he bought a bungalow in spite of having a house, एक घर रखने के बावजूद उसने एक बेंगलो खरीद लिया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक, कमजोर होने के बावजूद, शी रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। मतलब इसमें एडवर्स कंडीशन है, कमजोर थी और तेज दौड़ती है। एक बंगला था फिर भी दूसरा बंगला ले लिया, वो गरीब था फिर भी वो अमीर की तरह दिखता है। ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं? इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। वहीं पर अब बात करेंगे इन स्टेड ऑफ। इन स्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय। ही बॉट अ पेन इन स्टेड ऑफ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल को खरीदने गया था लेकिन उसने खरीदा क्या? एक पेन खरीदा। तो उसने एक पेंसिल के बजाय एक पेन खरीद लिया। इंस्टेड ऑफ डाइनिंग आउट, बाहर खाना खाने के बजाय, वी ऑर्डर्ड अ कपल ऑफ पिज्जास, हमने पिज्जास का एक जोड़ा पिज्जास का ऑर्डर दे दिया। करुणा हैज टॉप्ड इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स, करुणा ने मैथमेटिक्स के बजाय इंग्लिश में टॉप किया। तो हालांकि उसे इंग्लिश मैथ्स में टॉप करना था लेकिन इंग्लिश में टॉप कर गई। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ इन स्पाइट ऑफ एंड इन स्टेट ऑफ। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, आपके लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें फिल अप द सुइटेबल प्रेपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो प्रेपोजिशंस मैंने पढ़ाए हैं उन्हें आप रिवाइज भी कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन आप स्लाइड्स को भी देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये प्रेपोजिशंस अभी खत्म नहीं हुए, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम टिपिकल प्रीपोजिशंस को लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, फिल अप द सुइटेबल प्रीपोजिशंस। द स्टार्स आर शाइनिंग, अ ट्री, पेड़ के ऊपर तारे चमक रहे हैं। नेचुरली जब हमने पहले भी बताया था
कि अबव और ओवर के बारे में। जब स्टैटिक कंडीशन होती है तो अबव का यूज करते हैं। आपने भी बिल्कुल सही पहचाना। द स्टार्स आर शाइनिंग अबव अ ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग द बॉल, आई एम राइटिंग द पेन, birds are flying the tree, Ravi is standing, Anil and Mohit। एलिश का एग्जाम्पल आपने देखा था बीच वाला, उसी को सोच के आपको लिखना है कि क्या आप यहां पर फिल करना है। मिल्क इज पोर्ड द ग्लास, ये यहां पर मूवमेंट हो रहा है, इन और इनटू में से आपको एक चॉइस करना होगी। माई हाउस इज जेएनवी कोटरंका, द चाइल्ड इज प्लेइंग एनिमल्स, द टीचर इज राइटिंग a pen, Mr. Gupta reached here a car। आपको ये वीडियो देखकर इस होमवर्क को आपको करना है